हाय आई एम नक्षत्र वेलकम इन एपिसोड नंबर 16 एपिसोड नंबर 16 में आपका स्वागत बिफोर आई स्टार्ट दिस एपिसोड आई हैव फ्यू थिंग्स अ कपल ऑफ थिंग्स टू से दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आज का एपिसोड शुरू होने से पहले कुछ दो चीज़ें हैं मैं कहना चाहूँगा जो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, इंडिया को रिसेंटली अम्फान साइक्लोन का झटका मिला है। अम्फान साइक्लोन रिसेंटली केम टू इंडिया and especially West Bengal and Odisha. These two states suffered a lot, especially West Bengal. And I am seeing a lot of people, suffering. Many people lost their homes. They don't have electricity, no proper food, and at the other hand, there is COVID-19 going on. Very difficult and tough situation for those people. So all those people who follow me, who don't follow me, doesn't matter. But I am sending you lots of love. आपको काफ़ी प्यार और पॉजिटिव वाइब्स भेज रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द इससे एक उभरो और अपना जो फाइटिंग स्पिरिट है ना ऐसे कायम रखना, बिकॉज दिस फाइटिंग स्पिरिट ऑफ योर्स इज समथिंग दैट इंस्पायर्स मी, दैट इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल। बिकॉज इतनी टफ सिचुएशन में भी तुम हार नहीं मान रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रस्ट मी, सो डोंट गिव अप, कीप फाइटिंग। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। सेकेंड थिंग, ईद मुबारक गाइस। May Allah bless you and fulfill all your dreams and whatever you wish and aspire. Enjoy your day. That's it. That's what I wanted to say. So now let's talk about today's topic, gay dating apps. And trust me, आज का जो पोल हुआ है उस पर काफ़ी वोट्स आए and I got interesting inputs from people. Like today, like we started this new trend of taking poll or opinion of you guys on my Instagram stories about the topic on which I'm making a video. And I got amazing responses, different responses, and people express themselves from bottom of their heart, and that is something touched me. I replied to three of you saying that how I felt about it. Let's discuss this. Today, when I read those observations or experiences of people, I read it from like they were like super positive to super negative. आज के जो एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किए मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जब मैंने टॉपिक के ऊपर चर्चा का विषय रखा, काफ़ी सकारात्मक थे, नकारात्मक भी थे। ऑल द वे फ्रॉम ब्लैकमेलिंग एंड लाइक यूजिंग पीपल फ्रॉम देयर to finding good friends for lifetime or finding a boyfriend on Grindr. All those things are so different. And I realized, I want to say the conclusion right before we go to the end of this video, that any dating platform, be it straight or gay, दोनों dating ऐप, कोई भी dating ऐप लो, हम जिस तरीके से इसको यूज़ करते थे, यूज़र जो हम हैं, जिस तरीके से हम यूज़ करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को फेस करेंगे या फिर कैसे फेस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। मुझे किसी ने कहा था कि वीडियोस थोड़े शॉर्ट बनाओ, बट आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट बिकॉज काफ़ी लोग कहते हैं कि आपकी बात सुनना अच्छा लगता है। तो आई फील लाइक दिस इज़ मोर लाइक अ फ्रेंडली टॉक, वन ऑन वन। और काफ़ी टाइम है सबके पास, पीपल हैव लाइक एम्पल ऑफ टाइम इन दिस लॉकडाउन, सो या व्हाई नॉट। सो लेट्स गो। I would like to start with my personal experience with dating apps. And it is super positive for me because I have made my bread butter from this apps. मेरा पेट उस पे चला है, इस एप्स पे मैंने पैसे कमाए हैं, ऑफ कोर्स मेरे काम करके कमाए हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। आज बैकपैक ट्रैवल्स, जो मेरी ट्रैवल कंपनी है जो गे और बाइसेक्शनों के लिए काम करती है, जब इतने क्लाइंट्स नहीं थे, हम नए थे, तभी वर्ड ऑफ माउथ नहीं था, इतना अच्छा फैला नहीं था लोगों तक। तो we decided to use Grindr as an app for promotion, and me and my friends used to promote this tours, and this is how every tour went full, and Grindr से हमने promote करना शुरू किया था। तो Grindr actually helped me to reach out to my clients, and that's now I always get full bus to take any tour, and I don't have to go to Grindr specifically now because अभी बहुत ज़्यादा बड़ा client base बन चुका है। And second thing, I was a brand ambassador for Blued India, I think 1.5 years back, and it worked amazingly to me. They did a lot of things to me, I did a lot of things for them, and I made money there as well by giving my
by my face, my name, and of course my time to the app. So my experience is currently super positive. But it wasn't like that always. हम ग्राइंडर पे जाते हैं, हम ऐप पे जाते हैं, ब्ल्यूड पे जाते हैं, हम अपना मन बहलाने के लिए जाते हैं, हम सेक्स के लिए जाते हैं, हम सोशलाइज करने के लिए जाते हैं, किसी के साथ बात करने के लिए जाते हैं. वी गो देयर टू टॉक टू पीपल और फॉर सेक्स और लॉट अदर थिंग्स. बट आई रियलाइज दैट Grindr or any other app, it gives you mental trauma too. और ये बात सीरियस है. हम इसके बारे में सोचते नहीं है. मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा था इसके बारे में. Until I decided to think my journey and reading people's experiences, I realized that the rejection that come on their way, rejections जो आते हैं, मतलब लड़के रिजेक्ट किया जाता है. कुछ लोग तो काफ़ी रूडली रिजेक्ट करते हैं ग्राइंडर पे या ब्लूड पे. वो लोग डाइजेस्ट करने की ताकत सब में नहीं है. सब इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो रिजेक्शन को डाइजेस्ट करें. हमने कंप्लीट एपिसोड बनाया है रिजेक्शन कैसे फेस करें. प्लीज़ वो एपिसोड देखिए आप. एंड आई थिंक इस एपिसोड नंबर 6 और 7 प्लीज़ चेक. तो वो वाले व्हेन पीपल रिजेक्ट यू, दैट गेट्स यू ट्रॉमा. एंड टुडे लॉट ऑफ पीपल सेड दैट ऑन द गुड लुकिंग पीपल, एप्स, मसल्स, फेयर, दिस इज़ वॉट a lot of people demand and run behind on Grindr, which could be a reality, which could be what a lot of people are looking for, but not the entire picture. I will tell you the entire picture today. And trust me, sitting here I'm saying this comfortably doesn't mean I did not go through this. Rejection मैंने भी फेस किए, तभी भी किए, अभी भी कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत नाम हो गया तो लोग आके जो लड़का चाहिए उसके साथ में डेट कर लो. ऐसा नहीं होता. रिजेक्शन अभी भी आते हैं. और तो आप अकेले नहीं हो रिजेक्ट हो रहे हैं. मैं भी आप ही के साथ हूँ रिजेक्ट होने में. सो इट्स ओके. हर कोई रिजेक्ट होता है. आप उसको किस तरीके से लेते हो ये आपके ऊपर है. इट्स अप टू यू हाउ यू टेक द रिजेक्शन. टेक इट विद डिग्निटी और यू जस्ट कर्स दैट पीपल. गाली देते हो, ब्लॉक करके भाग जाते हो. दिस इज द मोस्ट कॉमन वे दैट पीपल डील विद रिजेक्शन. आई डोंट फाइंड इट वर्थ. It's not the right way to do it. So Grindr specifically, I will talk about it first. There are some people, the different breeds of Grindr, which are irritating to me specifically. You may like them, you may not like them, or you may agree disagree with me. कुछ लोग हैं स्पेसिफिक जो ब्रीड से ग्राइंडर की जो मुझे पसंद नहीं है. नफरत नहीं करता हूँ मैं उनसे, बट I get turned off looking at them or when I come across them. Turned off emotionally and sexually both. सो एक जो स्पेसिफिक 5 सेक्शन है मेरे हिसाब से जो ऐसे बंदों को मैं इग्नोर करता हूँ. और अनफॉर्चुनेटली दिस पीपल मेरे एरिया में तो ये लोग बहुत ज़्यादा है. आई थिंक हर एरिया में यही सीन है. इट्स नॉट जस्ट लाइक दिस इज माई एरिया, जस्ट योर एरिया. सो नंबर 1, दिस इज सुपर कॉन्फिडेंट ब्रीड. सो इफ आई एवर गो टू a public speaking for gay people and talk about confident, I will tell them the best guide to make you confident are the Grindr people. Confident क्या चीज़ है ग्राइंडर के बंदों से सीखनी चाहिए. मतलब गजब का कॉन्फिडेंट होता है. खुद की फ़ोटो रहती नहीं है. दे डोंट कीप एनी पिक्चर और फेक पिक्चर एंड देन दे से नो पिक नो रिप्लाई एंड दे कम टू यू एंड दे आस्क यू शो मी योर पिक्चर, शेयर योर पिक्चर. खुद फ़ोटो नहीं रखेंगे, तुम्हारे पास आके फ़ोटो मांगेंगे. इसको गजब का कॉन्फिडेंस का अवार्ड मिलना चाहिए. द मोस्ट कॉन्फिडेंट पीपल ऑफ द डेकेड ग्राइंडर के लोगों को. मतलब खुद का छुपा के रखो इन्फॉर्मेशन, दूसरों का पूछो भाई क्या लॉजिक हो गया इसके पीछे. एंड देयर इज अनदर ब्रीड, दे विल से डीपी इज माइन. दिस इज लाइक नॉन अपडेटेड पीपल. दे से द डीपी इज माइन, शेयर योर पिक्चर. और फिर आप डीपी देखने जाते हो, डीपी पे वो होते ही नहीं है. डीपी पे होता है जॉन अब्राहम. दैट्स द इशू. जॉन अब्राहम तो ना ग्राइंडर. ओके. I was in Surat, Gujarat, few years back, and when I started my Grindr, I felt like I'm in zoo right now because मुझे लगा मैं एक चिड़ियाघर में हूँ, क्योंकि किसी के डीपी पे जिराफ है, किसी के इस पे लायन है, स्वॉन से 2 राजहंस ऐसे होते हैं, लव बर्ड्स के फोटो है, कुत्ते के पपीज है, किटन्स है. जानवर आ गए ग्राइंडर पे, इंसान है ही नहीं. और फिर वो आके आपको हेलो बोलते हैं. एंड
हाँ हाँ हाँ, हम भले कितनी भी फोटो रखे वहाँ पे, दे डोंट बिलीव, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज दे डोंट कीप देयर पिक्चर नो बडी कैन कीप द पिक्चर. दे डोंट रियलाइज देर आर पीपल हु आर कॉन्फिडेंट and they have traveled this journey so ahead, they are very ahead in this journey of being confident and self acceptance. लोग समझते हैं कि मैं नहीं अपने रख सकता, दूसरे भी नहीं रख सकते. नहीं, एक्सेप्ट ये करो, तुम्हारे में थोड़ी हिम्मत नहीं, उन लोगों में है. तो मेरा ये प्रॉब्लम होता है. अभी मेरे प्रॉब्लम्स अलग ग्राइंडर पे. अभी मैं ग्राइंडर पे जाऊँगा किसी न्यू एरिया में, एंड इफ आई ओपन अप, पीपल विल से स्टॉप यूजिंग नक्षत्र भागवत पिक्चर. दिस इज द बिगेस्ट ब्लेम दैट आई गेट. They don't believe that's me. They feel like somebody else is using my picture, and they're like, then they'll message me on Instagram, is that you, Nakshatra? I say, yeah, that's me. And then they get surprised. So everybody have different struggle and different stories of Grindr. Most important thing is, let's just first continue about this breeds. और एक सबसे वाहियात breed है. The most weirdest breed of Grindr is that. They are somebody who will use somebody's picture, किसी और के फोटो यूज करेंगे और बताएंगे कि ये मेरे फोटो है. They will tell these are my photos, but these photos belong to somebody else. These are like big picture collector people. They will collect pictures of good-looking people from here and there, and they will say that this is mine. Are you ashamed of yourself that you don't look good? तुम्हें इस बात की शर्म है कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो? अगर तुम खुद का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तुम लोगों से क्या उम्मीद करोगे कि लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे? इफ यू कांट रिस्पेक्ट योर सेल्फ और योर लुक और योर पर्सनैलिटी, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट अदर्स टू डू दैट? रिमेंबर, people will reject you when you're gonna meet them because you are somebody else, and they will reject you, and they have complete right to do that, not because the way you look, but you lied to them. तुमने उनसे झूठ बोला, तुमने उनको फंसाया, तुमने एक ऐसे इंसान बनने की कोशिश की जो तुम थे ही नहीं. तुमने उनके भावनाओं के साथ खिला. एंड रिमेंबर, यूजिंग समबडी एल्स पिक्चर इज अ क्राइम. कायदे के अनुसार किसी और के फोटो यूज करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, और उसके लिए आपको सजा हो सकती है. यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, हु ऑल्सो डू दिस. बाकी लोग तो छोड़ ही दो, ये लोग भी करते हैं. बी कॉन्फिडेंट, अपने आप को स्वीकार करना शुरू करो. बाद में कॉम्प्लिकेशंस आने से अच्छा अभी से सॉर्टेड रहो. डोंट डू इट एंड डोंट टेक दिस लाइटली. अगर किसी का दिमाग सटक गया और आपके खिलाफ कंप्लेंट हो गई, आप चले गए. थर्ड आर द पीपल हु आर सीकिंग समथिंग और बेगिंग टू बी स्पेसिफिक. जॉब चाहिए, मैं जॉब के लिए कुछ भी करूँ. ग्राइंडर इज नॉट अ प्लेस टू सीक योर जॉब. ग्राइंडर जॉब ढूंढने की जगह नहीं है. अगर आपको असली में अगर जॉब चाहिए होता तो आप ये वक्त ग्राइंडर पे बर्बाद नहीं करते. यू वुड हैव गॉन टू some site which offers employment. You would go and fill your form and try there. People want easy money, right? But today, like few days before, I think yesterday or something, I got a message from a guy saying, I need 500 rupees. Please give me, I'll return it to you in a week. Or if I'm not able to return, मेरे साथ तुम sex कर लो, have sex with me, and I will not pay you 500 rupees. And I said that I don't give financial help to anybody, no matter how genuine it is. But this is the reality. Everybody wants to make money on there. And when I say this, let me tell you, I know a lot of people are expecting me to say something against those who escort or paid guys or massagers. I don't have problem with them personally, because अगर उनमें कुछ है जिसके लिए कोई दाम देना चाहता है, if they got something and somebody is ready to pay them, then that's their personal matter. Who are we to judge them on that particular thing? Because are you jealous that you don't have it, or you can't afford to pay them, or nobody is interested to pay you? Why we are sad just because they are good looking and they're not ready to have sex with you for free? You're crying about it. Let them do what they want to. They are putting their image at the risk and doing it. They will handle all the circumstances. तुम्हें अपनी जिंदगी पे ध्यान देना है. तुम अपने आप को कैसे represent कर रहे हो, ये important है. So another breed, दिस पर्टिकुलर पीपल, मतलब अपनी कास्ट और खरीद को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं. देयर आर 5 पीपल हू डू इट. दे आर सो फकिंग प्राउड ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड, एंड दीज आर जाट, पंजाबी, देन द राजपूत्स, मराठीज एंड मुस्लिम. सो दिस 5 people, they will always write, maximum of them will write in their bio,
Jat, Muslim, Maratha, and they'll put this smile, emojis. They'll brand themselves as they are. क्योंकि आप भाई मतलब ये बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहे हो तुम, या ये मैट्रिमोनियल साइट का फॉर्म है कि तुम आके ब्रांड कर रहे हो. द प्रॉब्लम इज नॉट विद देम, द प्रॉब्लम इज द गे कम्युनिटी. ये कम्युनिटी यानी ऐसे लोगों को हीरो बना के रखा है. मतलब जाट मतलब बहुत बड़ा मर्द होगा, अच्छे से लेगा बेड पे. ये बहुत सारे गे लोगों की सोच है. मुस्लिम ही विल हैव कट डिक. दिस इज व्हाट we believe, and this is the what we glorified them, their caste and the creed, and then they glorified it back. Or why we can't blame them. Actually the blame is on the gay community entirely, especially the bottom community. That Punjabi, he's supposed to be classy, manly, and he should be have ego. Same with Marathas, though I'm a Maratha too, but I feel sick about all these things. Avoid it, guys. And the last is अपने favorite pure tops जो औरतें ढूंढने आते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट स्पेसिफिकली. हमने उनकी धज्जियाँ ऑलरेडी उड़ाई है. वी ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड देम इन एपिसोड नंबर 8 टॉप बॉटम, विच इज़ माई मोस्ट पॉपुलर एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, एंड इज स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑन. But trust me, I'm gonna make one more special episode dedicated to this people. I love them. I love these guys. And I got some messages. These people, they sent me some hate messages, and I was like, don't worry, I'm gonna give a lot of content to you. So yeah, one more episode specifically on pure tops, or so-called straight or bi-curious guys. So these are the different breeds of grinder जो मुझे personally पसंद नहीं, और ये maximum हम देखते हैं grinder पे. And I don't know what you feel. Let me know in comment section. But सबसे important चीज़, ये मेरी पसंद तुम्हारी पसंद के ऊपर नहीं है. तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को कैसे ब्रांड कर रहे हो. This is what is important. I have found my ex relationship. I found him on Grindr, and he was the best man. And trust me, he's still the best man. We are well wisher to each other. तो ग्राइंडर पे रिलेशनशिप भी मिलती है, ग्राइंडर पे दोस्त भी मिलते हैं, ग्राइंडर पे सेक्स भी मिलता है, ग्राइंडर पे बुरे लोग भी, अच्छे लोग भी. You get it, everything. Relation, friends, sex, good people, bad people. All boils down to you. That only two things. Your agenda and your approach. आपका एजेंडा क्या है, आपको क्या चाहिए. और ऐसा ही नहीं लोगों को दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए. लोगों को दिखाने के लिए मैं दोस्ती प्यार सब लिखता हूँ बायो में, बट मेरे मैसेज टॉप बॉटम साइज से शुरू होते लोगों के लिए. ये बहुत लोग करते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है. So my agenda is, if I want sex, that's okay. It's okay, everybody has sex. And there's nothing to feel ashamed about. So you just want sex, hold on to that. Don't pretend कि, मैं अब सती सावित्री हूँ. Not gonna work out. And second, your approach to people and to yourself. How you approach people. आप लोगों को कैसे अप्रोच करते हो अपना एजेंडा लेके, वो आपको कैसे रिटर्न करते हैं, और रिटर्न हुए कम्युनिकेशन को आप कैसे वापस डील करके कैसे सिचुएशन को अप्रोच करते हो, रिजेक्शन को कैसे फेस करते हो, हाउ यू टेक द अप्रोच टू पीपल, हाउ यू व्हेन दे कम बैक टू यू, हाउ यू डील विद दैट रिस्पॉन्स, द पॉजिटिव और नेगेटिव, और हाउ you deal with rejection. Only these two things, your approach and your agenda, only these two things matter. If you make these two things strong, अगर आप दोनों चीज़ों पे अच्छे से काम करो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा. लोग सेक्स ढूंढते, आप ये कंप्लेन करते हो, people find sex on Grindr, they will always find sex on Grindr. And trust me, gay people are not the only one. If you ever go to straight apps, people also find that there also. Straight लोग तो ज़्यादा और horny होते हैं, तो वो लोग भी वही ढूंढते हैं. तो इंसान होके हम यही करेंगे. ऐसा नहीं कि नक्षत्र ने कहा तो चलो अभी सब सेक्स दो. इतना भी ये मत करो कि तुम्हें आगे जाके रियलाइज होगा कि यार जब मुझे लग रहा था कि टाइम था, मैं जब दोस्त ढूंढ सकता था और रिलेशनशिप ढूंढ सकता था, वो वक्त मैंने बर्बाद किया. डोंट रन बिहाइंड सेक्स सो मच दैट यू इग्नोर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंडशिप और सपोर्ट और रोमांटिक एंगल और रिलेशनशिप, दैट यू मिस आउट ऑन दिस टू थिंग्स. ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन दिस. Don't have sex just because you're horny or just because you want to get laid every single day. Do focus on other things too. Like I said, I got so many positive messages today that people said that they found their boyfriend in relationship for 5 to 7, 10 years. Yeah, somebody said 12 years too. They're in relationship for 12 years and they met through Grindr. तुम कंप्लेन करना छोड़ दो कि यार मुझे सब सेक्स सीकर से मिलते हैं, सबको सेक्सी करना है, nobody takes seriously, सब सेक्स के पीछे भागते हैं. It's true, it's possible. But सब नहीं भागते. तुम्हारे में पेशेंस नहीं है.
हैव पेशेंस, राइट चीज़ राइट टाइम पे होगी. कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप, यू नो थिंग विल हैपन. सो आई वुड से होल्ड ऑन, stop complaining and start living the moment. You should be knowing or not getting bothered. तुमको पता है कि तुम्हें ये लोगों को इग्नोर करना है तो जस्ट इग्नोर करना है. उनका एग्जिस्टेंट शुडंट ट्रबल यू. वो अगर है आसपास तो वो है आसपास. इस चीज़ का बुरा लगना या इसका गुस्सा आना, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. Like I said, I feel irritated with those guys, but I had started dealing with them. मुझे पता है कि उनको जैसे फिल्टर से इग्नोर करना है. So I don't piss off my mood. और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कहते हैं लास्ट डे ऑन ग्राइंडर, आई एम लीविंग ग्राइंडर एंड ऑल दिस शिट एंड दे कम बैक एवरी वीक. ऐसे बहुत लोग मेरे एरिया में दिखते हैं. कभी जाके आई गिव देम टॉन्ट्स, एंड यू जस्ट सेड दैट यू लीविंग एंड दे लाफ अबाउट इट. सो या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू ब्रांड योरसेल्फ. आप अपने आप को परफेक्ट रखो. द प्रॉब्लम इज इन इंडिया और स्टिल कंट्री लाइक इंडिया, you are not open. I understand you have your reason, you are discreet, आपको open up नहीं होना है. your family and people might see you on Grindr, or people misuse picture on Grindr, screenshot लेके अपने profile पे लगाते हैं and all those shit happen. But if you are not giving you 100%, don't expect other people to give you 100%. all are living in problems, all are living in struggle. तो अगर आप 50% दे रहे हो तो सामने वाला भी 50, 40, 20 या 80% देता रहेगा. It's you who are taking chances on the people. Trust me, like I said in episode number 11, blackmailing, you need to judge that person. मतलब ऐसा नहीं कि apps देखे, muscles देखे, चलो भाई मैं तो अपने होश खो बैठा. I just want that guy on my bed right now. Don't. Your life, your safety is more important than anything else, and only you can protect it. Grindr as an app or Blued as an app नहीं आएगा to protect you, or they might not even reply to your emails. You're not gonna destroy your life for anything. You just need to tell yourself, मैं जो भी कर रहा हूँ होश में करूँगा, होश खो के नहीं करूँगा. रिजेक्शन, आई एम सॉरी गाइस, रिजेक्शंस आते हैं. मेरे पास दो ऑप्शन है. एक तो असलियत ये है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ मेरे में कुछ कमी है. फिर उसके बाद और दो ऑप्शन आते हैं कि मैं कमी को लेके आगे बढ़ूँ या फिर उस पर काम करूँ. दूसरे को खुश करने के लिए नहीं, अपने आप को जस्टिस देने के लिए. जस्ट टू गिव द बेस्ट वर्जन टू योर सेल्फ. आई हैव वर्कड ऑन इट. आई वाज सुपर स्लिम, स्टूपिड. आई वर्कड टू बी हियर एंड द रिजेक्शन रेट इज प्रीटी लो, बट इट्स स्टिल देयर. लाइक आई सेड, डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन. डोंट विक्टिमाइज योरसेल्फ कि सब अत्याचार मेरे साथ ही होते. आई एम द ओनली विक्टिम. नो बेबी, एवरी सिंगल गे मैन इज अ विक्टिम. एवरी सिंगल पर्सन ऑन डेटिंग ऐप इज अ विक्टिम, be it straight or gay. हर किसी की इश्यूज है, हर किसी के लिए बैड एक्सपीरियंस है, हर किसी के लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस. पीपल हैव एवरीथिंग टू शेयर एंड टॉक अबाउट इट. लाइक आई सेड, इट बॉइल्स डाउन टू वन थिंग. डेटिंग ऐप के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस. इट हैव्स बोथ प्रोज एंड कॉन्स. इट्स अप टू यू विच साइड यू वांट टू बी एंड विच साइड यू कैन यूटिलाइज. ट्रस्ट मी, यू कैन ईजिली डू इट. तुम्हें जस्ट प्रोज के ऊपर काम करना है, एडवांटेज के ऊपर काम करना है, करो. अगर तुम अपना होश खो बैठे हो, डिसएडवांटेज में स्लिप हो जाओगे. यू स्लिप इनटू डिसएडवांटेजेस एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन दैट. सो यूज डेटिंग एप्स. डोंट लेट डेटिंग एप्स यूज यू. या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेटिंग एप्स को आप यूज करो. डेटिंग ऐप को आपको यूज करने मत दो. ये एक ऐप है, ये आपकी ज़िंदगी तय नहीं करेगा. सो ज़्यादा बुरा मत लेना, सीरियसली मत लेना. चीज़ों के लिए टाइम दो. इमोशनल भावनाओं में बहना, ये सब चीज़ थोड़ा कंट्रोल करो, प्रैक्टिकल बनो. दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. बट लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से. तो लेट्स सी, हमने जो वोट लिए थे इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके बारे में लोगों को क्या कहना है, आइए देखते हैं. लेट्स सी. हमने ये सारे सवाल क्वियर या गे कम्युनिटी के लिए पूछे थे. हमने सवाल पूछा, क्या आपने कभी ग्राइंडर और ब्लूड यूज़ किया है? 2001 people answered this. 84% people said yes, 16% said they did not use it. क्या आपको कभी गे डेटिंग ऐप पे एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ है? 1849 people answered this. 76% people said yes, 24 people said no. क्या आपको कभी गे डेटिंग ऐप पे एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक एक्सपीरियंस हुआ है? 1847 लोगों ने जवाब दिया है. 71% लोग कहते हैं हाँ, 29% कहते हैं नहीं.
हमने आखिरी सवाल पूछा कि आप डेटिंग ऐप किस लिए यूज़ करते हैं, सेक्स के लिए या सोशलाइजिंग करने के लिए। 1851 लोगों ने जवाब दिया है। 45% लोग कहते हैं सेक्स के लिए, 55% कहते हैं सोशलाइजिंग करने के लिए। So, this is what people want to say. Thank you for watching today's episode. Let me know in comment section your thoughts about this episode and which topic you want me to cover. आपके विचार मुझे बताइए आज के एपिसोड के बारे में, और आप कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे बात करते हुए देखना चाहेंगे जो टॉपिक हमने अब तक कवर नहीं किया. I hope you are safe and doing fine. Please subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram. And yeah, that's what I wanted to say. Enjoy your day. And I just want to tell you that you're special, no matter how you are or what you are, no matter what people told you on dating app. अपने आप को नीचे मत दबाना. लोग जो भी कहेंगे, लोगों का हमें कहना. आज मुझे भी आजकल पहले से अभी भी वैसे मैसेजेस आते हैं हेट वाले, बट दैट डजंट मेक मी आई डोंट स्टॉप फॉर दैट. मैं रुकता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाकी लोग भी जो मुझे पसंद करते हैं, जो बात सुनना चाहते हैं. सो डोंट फोकस ऑन नेगेटिविटी. Only be selfish and focus on positive sides of anything, be it life or dating app or anything else that you want to enjoy. Bye guys. I love you. Oops.